Good evening, everyone. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so hardly few hours are remaining for the D-Day to come, and it is going to be the last exam of 2020. So all set to go for Law CET 5 year. Okay, students who are appearing for CET 5 year, I would suggest you one thing कि कल इवनिंग के बाद पढ़ाई लिखाई सब भूल जाओ इन द सेंस कि लास्ट मिनट तक प्रिपरेशन करके कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, सो गिव सम रेस्ट टू योर माइंड, गिव अ कंप्लीट रेस्ट. आई वुड से रात को जल्दी सो जाओ, मॉर्निंग में फ्रेश रहो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट व्हेन वी आर making strategy for the exam. Okay, so there would be lot of gyan which would be given to you. ज़रूरी है ये, है ना. मैं भी शायद आज वही करूँगी. ये ज़रूरी है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए टिल योर एग्जामिनेशन, राइट. सो लेट्स बिगिन. So I hope all you know about CET is the date is on 11th October. That is on the Sunday. Okay. You have already prepared with all the documentation which are required. Self-declaration form is there. You have to stick a photograph on the front page. So like in your admit card you might have got a scanned photo, but you have to stick one, right? तो वो भूलना नहीं है बिल्कुल भी. Don't put the signature right now. Okay, you have to put the signature when you will be reaching the center. तो ये कुछ basic चीजें हैं जो आप एक बार go through कर लो. There are 4 pages. So out of those 4 pages, the first page is your admit card. Rest all are the instructions which are given to you. So read the instructions thoroughly. कल evening 7 o'clock के बाद सिर्फ यही करना है. इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो, सारे डॉक्यूमेंटेशन एक जगह कर लो. Keep your pouches ready with pen, pencil and everything in it. Okay, don't forget to take your identity card to the center. Okay, in like last year also it happened. One of the student called me and told कि मैम मैं एडमिट कार्ड तो लेके आई हूँ बट आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गई. So in such case I won't be able to help you out. Okay, so ये कुछ basic चीजें हैं which we expect कि आप लोग कर रहे हैं और अच्छे से उसको follow करेंगे whatever is given to you. So yes, probably if you are going for a entrance for a exam जिसके लिए हम इतने time से prepare कर रहे हैं, probably there are students who are preparing for 2 years or maybe for 1 year or for 6 months or 4 months or let's say for 2 months. Okay, so it doesn't matter for how much time you are preparing for, but what it matters it is that how good you are delivering on your exam day. ठीक है, तो उस पे अब फोकस करना है. क्या नहीं हो पाया, क्या हम नहीं कर पाए, ये अब सोचने का टाइम नहीं है. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो हमें आती भी है वो हम भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज वी कॉन्सेंट्रेट ऑन कि हमें क्या नहीं आता या हम क्या करना भूल गए, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट इन द लास्ट मिनट. तो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ हैसल and you may forget the things which you have reminded for over a period of time. And I know most of you have given your 100% for the preparation, so you have to showcase that in your examination. So I have written a quote on the screen that success doesn't come to you, you have to get it right or you go to it. So जस्ट डोंट थिंक कि मैंने पढ़ाई कर ली अब सक्सेस तो आना ही है. डेफिनेटली वो आएगी, बट उसके लिए एक कदम और हमको अभी आगे चलना है. हमें अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिखना है. ठीक है, विथ एंटायर फोकस ऑन द एग्जामिनेशन,
पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस टाइम सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए, और जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पे आपको फोकस करना है rather देन व्हाट यू हैव लेफ्ट. तो कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, सो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार वो टॉपिक तो इतना अच्छे से समझा था, इतने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बहुत प्रैक्टिस भी की थी, बट क्यों नहीं बन रहा है, क्यों आंसर नहीं आ रहा है, व्हाई आई एम गेटिंग स्टक ओवर हियर. सो डोंट पुट too much of time and too much of effort while you are writing the paper. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में मत जाओ. ठीक है, जो क्वेश्चन बन रहा है जस्ट डू इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड पे अटेंशन टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, बीच में एग्जाम के बीच में ये सोचने मत बैठ जाना कोई एक पर्टिकुलर, लेट से एक सेक्शन अगर डिफिकल्ट आ गया तो ये सोचने मत बैठ जाना कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा, है ना, कोरोना का प्रॉब्लम भी मेरे साथ, फिर ये एग्जाम डिले का प्रॉब्लम भी मेरे साथ, और अब ये सेक्शन डिफिकल्ट ये भी मेरे साथ. तो इतना इतना डिटेल में मत पहुंच जाना जब एग्जाम लिख रहे हो तो. ठीक है, जस्ट स्टिक टू अ क्वेश्चन. इफ इट इज डिफिकल्ट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. ठीक है, इफ इट इज इजी तो ये भी ध्यान रखो वो सबके लिए इजी है. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए you have to just attempt your paper, right? I'll be giving you a brief discussion about how your 2019 paper was, और इस बार probably आप क्या expect कर सकते हो. But my sincere request is just give your best and focus in the entire पेपर. ओके, पूरा जो 120 मिनट का टाइम है आपके पास वो पूरा कंसंट्रेशन आपका सिर्फ पेपर पे ही होना चाहिए. So I know this is something that you all are aware of. ठीक है, तो just check your admit card once again. Just check the time of your reporting. So probably if the timing is 8 a.m., that means your exam will be between 9 to 11. Okay, and if you have got an afternoon shift, then your reporting time is 11:30. Sorry, I have miswritten here. So your exam will be from 12:30 to 2:30. ठीक है, so इस slot में जिनका exam है, right? So you have to make sure that you are not taking a heavy break, a heavy lunch. Okay, so take heavy breakfast and then go to the center, appear for the exam. घर आके अच्छे से खाना खा लेना. ठीक है, और 9 से 11 वाले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट. ठीक है, एटलीस्ट ऐसा ब्रेकफास्ट कर लेना कि एग्जाम के बीच में ऐसा ना हो कि एग्जाम देते देते हमें भूख लग जाए और हमारा कुछ मिनट के लिए डाइवर्शन उधर हो जाए. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान में रखना है while giving the exam. And most importantly, when you are reaching at the center at 8 a.m. and till the time your exam is starting at 9, क्योंकि उसके पहले थोड़ा कुछ process होगा, since those who have already appeared for CLAT they are bit aware of it. Rather those who will be going for the first time, so as we all know, due to COVID they have just increase the time. So 1 hour before the exam you have to report at the center so that basic formalities can be done with all the students. So you have to keep a sanitizer with you and all such things are already written on your instruction sheet, right? So read them carefully, go with them carefully. Okay, एक चीज जो आप सबको खुद को बोलना है वो है कि यू, आई कैन एंड आई विल, मतलब मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी. ओके, और ये आपका एग्जाम स्टार्ट होते तक बस, फिर ऐसा नहीं कि एग्जाम लिखने बैठ गए एंड देन यू आर रिपीटिंग दैट वर्ड्स टू यू. ठीक है, सो समथिंग विच विल कीप यू मोटिवेटेड till the entire time when you will be appearing for the examination. So you have to keep on telling yourself that yes, I can and I will be doing it, or I will be giving my best to this exam, because that is going to be the last exam for you for this year, right? Now, as we all know the paper pattern, but still I'll revise it once again for you. So legal section is going to be for 40 marks, 40 questions are going to be there. Then GK and current affairs will be for 30 marks. Logical reasoning will be for 40. English will be for 30 marks, 30 questions. And basic mathematics will be for 10 questions, 10 marks.
Fine. So as we all know, the exam is going to be online, computer based test रहेगा, multiple choice questions रहेंगे, time duration will be 120 minutes, and your total number of questions will be 150, and the marks allotted to them is 150. And for each question you are going to get 1 mark if you are getting it right, but if you are getting it wrong तो कोई मार्क्स उसमें आपका डिडक्ट नहीं होगा. सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ये सोच के ही पेपर लिखना. कई बार क्या होता है, जिन्होंने क्लैट लिखा है दे आर अंडर द इम्प्रेशन कि नेगेटिव मार्किंग अगर हुआ तो मेरा 0.25 चला जाएगा, एंड फॉर दैट दे लीव द क्वेश्चंस. इनिशियली वो लोग छोड़ देते हैं और बाद में फिर टाइम ही नहीं बचता है जब तक ये चीज़ याद आती है कि नहीं यार ये एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो जो पिछला एग्जाम लिखा था उसमें था. ठीक है. सो प्रोबेबली वो याद आते आते तक आप कुछ लास्ट सेकेंड्स पे रहते हैं, एंड बाय द टाइम यू जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट देम, आपका टाइम ओवर हो जाता है. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, just randomly tick the option which comes to your mind. Okay. And I know this thing that in previous session when sir had discussed these strategies, when Rishi sir had discussed these strategies with the students, तो sir ने एक probability का एक chart आपको बताया था कि अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है और अगर आप तुक्का मार रहे हैं, स्ट्रेट अवे आपको पता है कि मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ तुक्का ही मार रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज और व्हाट कुड बी द आंसर. ठीक है. तो तुक्का आपका कॉमन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुक्के वाले आंसर में आप ए मार्क कर रहे हो तो सबको ए ही मार्क करो. ठीक है. रैंडम मत चलो कि किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, तो गड़बड़ हो जाएगी. जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चीज है वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठेगा. राइट. बिकॉज आउट ऑफ 4 ऑप्शन, एज यू ऑल नो, 25% चांसेस होते हैं एक ऑप्शन सही होने के. ठीक है. तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप कोई भी एक रैंडम ऑप्शन अपने दिमाग में सोच लेना कि आज तुक्का कौन से ऑप्शन को मारना है. ठीक है. सो प्रोबेबली इट कुड बी ए, बी, सी, डी, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने लिए कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, बट तुक्के के लिए एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना. ठीक है. यस, इफ यू आर क्लोज विद दैट क्वेश्चन एंड यू आर स्टक बिटवीन टू, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं. फिर ये मत सोचना कि यार मैंने तो तुक्के के लिए ये सोचा था और ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ही है विद द गिवन ऑप्शन, बट मुझे तो तुक्का मारना है तो मैं तो उसी को मारूंगी. नो, it doesn't work in that way, right? So if you straight away know कि ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यही दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, so just go with your gut feeling, with your sixth sense, जो आपको उस टाइम बोल रहा है कि नहीं ये शायद करेक्ट आंसर हो सकता है, and don't take lot of time for it. ठीक है. क्योंकि अगर आप 10 बार भी सोचोगे तो भी वो कंफ्यूजन ही रहेगा माइंड में that whether I should select A or should I select B. ठीक है. So it's always better what comes first to your mind, you should tick and move ahead. Now let's move on to the time management, as this is something which we keep on telling you since you have started with your preparation, that you have to keep a timer for yourself, or like there is no sectional time which is being given to you in the examination, but you have to make a chart or you have to have it in your brain. एक बैक ऑफ द माइंड हमारे रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को मुझे इतना ही टाइम डिवोट करना है, इससे ज़्यादा टाइम अगर मैंने डिवोट किया सो प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लीव फ्यू क्वेश्चंस अनटच्ड. और अगर आपने सीईटी जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को अनटच्ड छोड़ा, एंड इवन इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी एग्जाम, राइट, बट सीईटी में स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे, तो हमको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो 150 क्वेश्चन में से एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो हमने रीड नहीं किया है. इवन तुक्का भी आपको रीड करके ही मारना है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट is going to happen, or it will be possible only if you are
डूइंग अ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज यू हैव 120 मिनट्स एंड यू हैव 150 क्वेश्चंस विद यू, राइट। सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। आई एम नॉट एनफोर्सिंग कि यही आपका होना चाहिए, बट दिस इज जस्ट आवर रिकमेंडेशन विच वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम years, and we have been training students from many years. So this is our recommendation because there were few students who have followed it and they got good results, right? So with that I can just give you a recommendation that this is how you can distribute. बट एकदम ऐसा भी नहीं है कि मैंने 30 मिनट लिखा है तो यहाँ पे आप 32 मिनट्स नहीं दे सकते या आप 28 मिनट्स नहीं दे सकते, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, लेवल ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। कि हो सकता है लीगल रीजनिंग लास्ट टाइम थोड़ा सा मॉडरेट आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आया था, इस बार हो सकता है लीगल रीजनिंग थोड़ा ईजी आ जाए, ठीक है। Same can happen with GK also, current affairs also. So it all depends कि आपका section कैसा है, क्या level का है. So based on that, of course you can change this, but बहुत variation नहीं होना चाहिए time में. So I have given around 30 minutes to legal reasoning because most of the questions will be principal fact question, जहाँ पे थोड़ा सा reading का time ज़्यादा लगता है, right? So for 40 question, what I feel is you should not give more than 30 minutes to legal reasoning. For current affairs, of course, for 30 questions, since number of questions are higher, but सारे one liner question होंगे और आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर क्लिक हुआ तो पहली बार होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर की यही एक ब्यूटी है कि अगर आपने वो चीज पढ़ी है तो आपको उसी टाइम क्लिक होगा कि इसका आंसर मैंने क्या पढ़ा था, और अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। वो हो सकता है एग्जाम देके आने के बाद द मोमेंट यू स्टेप आउट फ्रॉम दैट डोर एंड देन यू रिमेंबर कि हाँ यार इसका आंसर तो वो था, मैंने गलती से ये मार्क कर दिया, बट बिलीव मी एग्जाम के टाइम पे वो नहीं याद आएगा। तो जो चीज उस टाइम याद नहीं आएगी उसको हमको ज्यादा टाइम खराब वहां पे नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू बिकॉज इट इज वन लाइनर क्वेश्चन, ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी नहीं होंगे, तो 15 मिनट से ज्यादा हमको डिवोट नहीं करना है फॉर करंट अफेयर्स, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि उसमें आपके अरेंजमेंट के सेट्स आएंगे, पजल्स के सेट्स आएंगे, और एनालिटिकल वाला पार्ट जो है स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है सीईटी में। So it is recommended that you should give 35 minutes for 40 questions, ठीक है। कुछ questions तो सिटर होंगे like blood relation हो गया, coding decoding हो गया, number series हो गया, तो ये questions तो ऐसा है कि you have read the question, read the option and just identified the answer, right? But कुछ questions में time लगेगा wherein you have to make a chart or मे बी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा तो वैसा करना पड़ेगा, लीनियर होगा तो फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर पुटिंग अ करेक्ट डेटा और नॉट। कई बार you have to go back to the question to recheck whether I have done it correctly or not. तो ये सारे प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, that is why I have given 35 minutes over here. Then next section is English. So again in my verbal sessions I have told you lot of time that you should not give 35 to 50 second to a question, right? Until and unless it is not involving lot of reading. So हो सकता है अगर reading comprehension थोड़ा lengthy है तो उसको हमको time ज़्यादा देना है, but for grammar questions you should not take more than 1 minute, ठीक है। So probably for that 25 minutes is a decent time that you can devote for English. And last is maths, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो अभी से मन बना के बैठे कि ये तो छोड़ना ही है ना, तो ये 15 मिनट अब मैं कहाँ उसको मतलब एडजस्ट करूँ ये सोच रहे होंगे, बट बिलीव मी सीईटी में मैथ्स इजी आता है अगर आपने थोड़े भी बेसिक्स पढ़े हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि ट्राई करो, मिनिमम 10 में से 5 क्वेश्चंस तो आप ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब ये है कि अपना पेन चलाओ, ठीक है, और थोड़ा देखो कि यस हो सकता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, ऋषि सर का कोई लेक्चर याद आ जाए आपको, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद आ जाए, और हो सकता है सिर्फ
सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके यू आर गेटिंग द आंसर, और सिंपल एडिशन यू हैव टू डू एंड यू आर गेटिंग द आंसर। तो होता है बहुत बार कि इतने सिंपल, और यूजुअली मैथमेटिक्स आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं मिलेगा सीईटी में, ठीक है, वो इजी साइड पे ही रहता है, मॉडरेट टू इजी रहेगा वो, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना, मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो जेन्युइनली अटेम्प्ट करना, ठीक है। जेन्युइनली मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू जस्ट गिव पेन टू योर हैंड्स और थोड़ा सा लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। बाकी कुछ 2-3 मिनट आपको तुक्के मारने में चले जाएंगे मैथमेटिक्स में, तो उसको कंप्लीटली 15 मिनट्स को ये मत सोचना कि ये 15 मिनट उसमें डिवोट होंगे ही नहीं। सो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम टाइम दैट यू हैव टू डिवोट टू मैथ्स आल्सो। नाउ लेट्स कम टू ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग दिस सेक्शन। ये अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डिलेमा चल रहा होगा कि मैं कौन सा सेक्शन पहले उठाऊं। प्रोबेबली मे बी कुछ स्टूडेंट्स उसको कैट एग्जाम से भी रिलेट कर रहे होंगे कि कैट में तो मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया था जो शायद मतलब प्रॉपरली नहीं वर्क किया था, सो शुड आई चेंज दी सीक्वेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सेक्शंस आर गोइंग टू बी सेम, ठीक है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ओवर हियर इज, आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द मॉक्स, ठीक है, और मॉक में भी आपने एक स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाई होंगी, एक ऑर्डर आपने डिसाइड किया होगा कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले पिक करना है, एंड टिल नाउ यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है, ठीक है। एंड डोंट टेल मी कि मैम सबकी एक कॉमन वीकनेस है एंड दैट इज मैथ्स। So if you are saying me that, you have to be really careful on this, because maths is only having 10 marks for that, right? So you have to keep on identifying your weaknesses. अभी भी आपके पास कल का दिन है पूरा, ठीक है। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज कि हो सकता है लॉजिकल में यू फाइंड आउट फ्यू टॉपिक्स जो आपकी वीकनेसेस हो। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ लॉजिकल, जस्ट मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस हम पहले नहीं उठाए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन से आपने शुरू किया ना तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेजमेंट आता है कि यार नहीं बन रहा है लॉजिकल सेक्शन, क्योंकि मैंने इसी पे ही एक अपनी उम्मीद कायम थी मेरी कि लॉजिकल तो कुछ करके आऊंगी, या फिर इंग्लिश तो मैं कुछ कर ही लूंगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए वोकैबुलरी जो मैंने नहीं पढ़ा, मे बी टाइम नहीं मिला, या ऐसी कुछ वोकैबुलरी आ गई जिसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, और वो क्वेश्चंस को अगर आपने शुरू में सिलेक्ट कर लिए जस्ट बिकॉज कि हमको एक वर्ड और 4 ऑप्शंस दिख रहे थे, इतना छोटा क्वेश्चन वो पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। सो डोंट गो विद इट, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। प्रोबेबली हो सकता है लीगल आप लोगों में से कुछ लोगों की स्ट्रेंथ हो कि आपने प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस जो हमने करवाए क्लास में, या आपने मॉक्स अटेम्प्ट किए उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, सो प्रोबेबली यू कैन पिक दैट इनिशियली, ठीक है। या फिर मॉक्स में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप वहां स्कोर कर रहे हैं, या इंग्लिश में आप स्कोर कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन, ठीक है। उसमें मैं या कोई भी फैकल्टी आपको मतलब आपके जगह पे आके ये सारे इवैल्यूएशन और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज यू who is carrying your own strength and your own weaknesses, and they cannot be common for everyone, right? So you need to understand this, थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क कर लो, इंग्लिश में भी चीज़ों को सेग्रीगेट कर लो, लीगल में चीज़ों को सेग्रीगेट कर लो, प्रोबेबली लाइक यू आर वेरी गुड विद क्रिमिनल फैमिली टॉट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो आर्टिकल्स याद रखने में, तो उन क्वेश्चंस को बाद में लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, और वही डिसाइड करता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये डिसाइड नहीं करता है कि लॉजिकल मेरी स्ट्रेंथ है तो आई पिक इट इनिशियली, और हो सकता है 1 hour आई एम डिवोटिंग टू लॉजिकल, 1 घंटे के बाद याद आ रहा है कि यार बाकी सेक्शंस भी तो हैं, आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस इन 1 hour, है ना। एंड नाउ यू आर अंडर प्रेशर कि अब 1 घंटे में मैं 110 क्वेश्चन कैसे करूंगा, 60 मिनट आई हैव टू अटेम्प्ट 110 क्वेश्चन। तो इतनी बड़ी मिस्टेक मत करना एग्जाम में, ठीक है। सो स्ट्रेंथ डजंट मीन इट इज अबाउट द एंटायर सेक्शन, इट ब्रॉडली मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आपके लिए
आपका स्ट्रेंथ एरिया है और कौन से टॉपिक्स आपके लिए वीक एरियाज है। एज आई टोल्ड यू, जो वीक एरियाज है उसमें से स्ट्रेट अवे कुछ क्वेश्चंस तो हमको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि इसमें तुक्का ही मारना है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकती मैं। ठीक है, सो ये एक एनालिसिस आपको एक दो और मॉक दे दो कल में, ठीक है, एंड जस्ट फिगर इट आउट। नेक्स्ट सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू इज you should attempt that section first in your exam which you are good at. So probably as I've told you, like legal हमने बहुत प्रैक्टिस किया या इंग्लिश हमने बहुत प्रैक्टिस किया, तो हम उसको पहले पिक कर लें। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। इफ देर आर 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, डोंट जस्ट अज्यूम कि सारे 30 के आंसर्स मुझे आते ही है। इफ यू आर रीचिंग टू 22 to 25 in between that, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, इट्स अ गुड जेन्यून अटेम्प्ट। बाकी तो तुक्के मारने ही पड़ेंगे। ठीक है, सेम इज गोइंग टू गेट अप्लाइड फॉर ऑल दी सेक्शंस। ठीक है, सो आपको एक ब्रैकेट लेके चलना है कि ये ब्रैकेट में मुझे, एंड दैट ब्रैकेट विल लाइज बिटवीन 75 to 80%, कि 75 to 80% ऑफ दैट सेक्शन शुड बी जेन्यूनली अटेम्प्टेड। ठीक है, कुछ सेक्शन में हो सकता है कि वो 50% पे हो, लाइक मैथ्स, जो कि हमने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है, तो अब उसको सीरियस होके लास्ट मोमेंट पे कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो वहां पे आपका 50% हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द सेक्शन इट शुड बी बिटवीन 75 to 80% की विंडो में आपको जेन्युइन अटेम्प्ट रखने हैं। एंड 15 to 25% ऑब्वियसली आपको तुक्का ही मारना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, राइट? नेक्स्ट, दिस टेक्निक इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस बिकॉज एज वी ऑल नो, जिस चीज में हम अच्छे हैं, जो हमसे शुरू में बनने लगती है, उसमें और कॉन्फिडेंस आता है और पेपर अच्छा जाने लगता है ना। हमें एक फील आने लगता है कि नहीं, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, राइट? बट अगर आपने गलती से भी ऐसा सेक्शन उठा लिया किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे, या हमने लास्ट मिनट पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए स्ट्रैटेजीज के, ठीक है मैम ने तो बताया, लेकिन कुछ और रिसर्च कर लेते हैं, कुछ और लोगों से सुन लेते हैं, कुछ पुराने जीएलसी या आईएलएस के टॉपर्स से सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लास्ट मिनट पे इतना सब एफर्ट्स मत लो। ये एफर्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने में लगाओ, राइट? ठीक है, सो लास्ट मिनट में इतना सब पेन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसमें मैं अच्छी हूँ वो चीज़ मुझे पिक करना है, जस्ट टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस फॉर द एंटायर पेपर। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है इफ़ यू आर गोइंग विद द टेक्निक दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो वो सेक्शन पिक करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और उससे शुरू करो पेपर। एंड आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर अटेम्प्टिंग 10 क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस, आपको समझ आ जाएगा कि वो सेक्शन मॉडरेट है, डिफिकल्ट है या इजी है। ठीक है, तो अगर डिफिकल्ट है, डोंट वरी इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब वो सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, और इधर उधर फेसेस मत देखो दूसरों की कि वो खुश है या टेंशन में है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, और नर्वसनेस, एक तो टाइम खराब होता है दूसरे लोगों को देखने में, ठीक है, और दूसरी चीज नर्वसनेस अलग आती है कि यार वो तो इतना खुश होके पेपर दे रहा है और मैं तो एकदम मतलब बन ही नहीं रहा है मुझसे क्वेश्चंस। सो डोंट डू ऑल सच थिंग्स व्हेन यू आर सिटिंग फॉर अ एग्जाम। I have told you and I will be keep on telling you this कि focus on your exam for that 120 minute. You have to concentrate only on your exam. ठीक है, इधर उधर का सब भूल जाओ, कौन क्या कर रहा है, मैंने क्या किया था, मैं अब क्या करूंगी, फ्यूचर में मैं जीएलसी जाऊंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं आईएलएस पहुंच गई मतलब अब मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, थोड़ा भी अच्छा जाने लगा तो हाँ अब तो मुझे मिल जाएगा, अब मैं क्या करूंगी, मैं मुंबई जाने की पैकिंग शुरू करूंगी या आईएलएस के लिए पुणे का कुछ मैं ड्रीम करना अभी से शुरू कर दूंगी। सो बिलीव मी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जाम हॉल से आने के बाद के लिए बचा के रखो, क्योंकि उसके बाद भी आपको अच्छा टाइम मिलने वाला है ये सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो शायद बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, कि if you start your exam with the selection in which you are less strong,
you can feel discouraged for the remaining sections too. तो हो सकता है कोई फैकल्टी ने या कोई पर्टिकुलर पर्सन से आपने सुना हो कि यही सेक्शन से स्टार्ट करना ये टाइम कम लेता है, या इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्कोर अच्छा हो जाता है। और ये जानने के बाद भी कि ये सेक्शन तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, मुझे बनता ही नहीं है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, I'll just tell you one thing कि बहुत बार हो सकता है कि लोग आपको बोले कि जीके से शुरू करो, करंट अफेयर से शुरू करो, जस्ट बिकॉज 30 क्वेश्चंस है, 15 मिनट में हो जाने वाला है। हाँ, आने वाली स्लाइड में मैं भी वही चीज़ बोलूँगी, आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि मैम आपने प्रीवियस स्लाइड में तो ये बोला था और अब ये क्यों बोल रहे हो, उसका मैं जस्टिफिकेशन अभी दे देती हूँ। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली नहीं पढ़ा, ठीक है, पढ़ने का मतलब ये है कि रिविजन, ठीक है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने लास्ट मोमेंट पे 2 लेक्चर्स आप लोगों के करवा दिए विथ ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस और द प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच मे कम इन योर एग्जाम, और आप सिर्फ उसी को रिलाई करके और एग्जाम में बैठ गए कि नहीं सर ने बोला था पढ़ाते पढ़ाते कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आ सकता है, और हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को स्टार मार्क किया, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के गए, और हमने जीके से शुरू किया क्योंकि हमें बोला गया था कि जीके से शुरू करना, ठीक है। और एट द बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ है कि जीके में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, एक्सेप्ट देन द पीडीएफ व्हिच वाज बीन शेयर टू मी ऑन 10th of October, क्योंकि कल मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ जीके का, लास्ट मिनट एक ब्रशअप के लिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर उतना ही पढ़ने वाले हो, सो बिलीव मी, डोंट अटेम्प्ट दैट सेशन इनिशियली, फिर कहीं ना कहीं वो डिस्करेजमेंट आएगा, राइट, ओके। बट हाँ, अगर आपने जेन्युइनली प्रिपरेशन किया है करंट अफेयर्स का, जीके का, आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपने मल्टीपल टाइम लेक्चर्स देखे हैं, उनको रिवाइज किया है, मॉक्स में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है करंट अफेयर्स में, जीके में, एंड यू कैन रिमेंबर द फैक्ट्स which are being asked in current affairs or GK, then go for it. ठीक है, so this is a simple suggestion from my end. Now let's move on to the next slide. It is the golden rule, and I know probably ये गोल्डन रूल आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, एंड इनफैक्ट आपने लेक्चर में बहुत बार फैकल्टीज के मुंह से भी यही चीज़ सुनी होगी, बट स्टिल आई विल रिपीट इट वंस अगेन, ओके। So keeping in mind the toughness level and time management. Toughness level, I would say, because 150 question, 120 minute, you are not getting even 1 minute for a question, ठीक है। So उस अकॉर्डिंग मैं टफनेस बोल रही हूँ। डोंट जस्ट कंपेयर कि मैम इससे भी बड़े बड़े एग्जाम हम तो दे के आए हैं, ठीक है। तो टफनेस तो हमें पता है क्या है, ठीक है। सो आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। तो हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे स्टिक करना है, क्या स्ट्रैटेजीज लास्ट मिनट पे हमको अपनी इम्प्लीमेंट करनी है, सो फॉर दैट आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन. So following could be your, ideal strategy, I would say, for attempting a section. So here I have written GK current affairs section to be attempted first. But again उसका मैंने एक लंबा चौड़ा ज्ञान आपको ऑलरेडी दे दिया है कि अगर इसको फर्स्ट नहीं रख रहे हो, so you have all the solid reason with you कि आपने उसको फर्स्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है। बट अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं है, देन गो फॉर इट, इट शुड बी योर फर्स्ट सेक्शन टू अटेम्प्ट, क्योंकि ये चीज़ भी मतलब it's been proved because I am from psychology and I keep on studying on psychology because it's my favorite subject. तो साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं एंड आई कीप ऑन रीडिंग देम। तो उसमें ये बोला गया है कि अगर एक बार आपका ब्रेन थक गया और उसके बाद अगर आप कोई ऐसे कंटेंट को याद करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने बहुत पहले पढ़ा था, जो कि जीके में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट मिनट पे जो आपने पढ़ा है वही सारे क्वेश्चंस आने वाले। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि करंट अफेयर्स आपको हो सकता है कि लास्ट अगस्त या लास्ट सितंबर या लास्ट अक्टूबर से कुछ आ जाए, और आपने तो रिवीजन सिर्फ अभी का ही किया है, जनवरी से लेके अभी तक, बट आपने पढ़ा था कभी उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा था। तो हो सकता है आपने वो पढ़ा था,
तो उसको याद करने का बेस्ट वे यही है कि आप उसको शुरू में अटेम्प्ट करें जब आप फ्रेश माइंड है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में एंटर करते हैं सो आपका माइंड एकदम फ्रेश है और आप खुद से ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द टाइम यू जस्ट रीच टू द डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगे, बट इनिशियली ऐसा कोई स्टूडेंट देखा है आपने कि शुरू से ही बस ये सोच के बैठा है कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, बट ठीक है पेरेंट्स ने बोला और अब करना है, कुछ तो करना है लाइफ में तो कर लेते हैं। ऐसा ऐसा कोई भी स्टूडेंट मैंने नहीं देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। सो प्रोबेबली ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आप सब यहाँ हो मतलब आप सिंसियर हो अबाउट द एग्जाम, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद जीके एंड करंट अफेयर्स अटेम्प्ट इट फर्स्ट, ठीक है, विद योर फ्रेश माइंड। तो आपको बहुत सारे डेटा रिकलेक्ट करने के लिए आसानी होगी। एंड सेम गोज विथ लीगल रीजनिंग, क्योंकि लीगल रीजनिंग भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपने सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ा है, जो शायद आपने इसके पहले कभी पढ़ा भी नहीं था, और शायद आप ये सोच के बैठे कि अगर ये एग्जाम क्रैक हो गया तो आगे लीगल क्या पढ़ना है वो हम तब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आपने लीगल किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि मुझे ये एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैटर करने हैं। सो अगेन इट इज एडवाइजेबल that after attempting current affairs you should attempt legal reasoning, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ा है और आप सिर्फ इसी एग्जाम के लिए उसको रिवाइज करने वाले हैं, रिमाइंड करने वाले कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था। आप कोई मतलब लॉ के स्टूडेंट नहीं है कि आपने चलते फिरते में डिस्कशन भी बहुत बार किया है या आपको बहुत सारी टर्म्स पहले से ही पता है या आप उनको डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो। नो, इट इज नॉट द केस विद यू, ठीक है। सो अगेन इट इज एडवाइजेबल कि आप करंट अफेयर्स के बाद लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें भी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को याद करने के लिए। वो हो सकती है टॉट की हो, कॉन्ट्रैक्ट की हो, क्रिमिनल की हो, फैमिली को हो, या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आपने सेक्शंस भी याद किए हो या आर्टिकल्स भी याद किए हो। वो तभी याद आएंगे जब आप फ्रेश माइंड से एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश के लेंदी पैसेजेस पढ़ के या फिर हो सकता है लॉजिकल के लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करके पजल अरेंजमेंट के, और उसके बाद अगर आप लीगल सेक्शन पे आए तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप वहां स्टक हो जाओ, जस्ट बिकॉज you are not just getting the data which was already there in your mind and now your mind is tired। तो अब वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था, बट कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, किससे पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। हो सकता है फैकल्टी की शक्ल याद आने लग जाए कि उन्होंने पढ़ाया था, बट उससे कुछ काम नहीं बनने वाला, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट would be a suggestion from my end, and I have written a reason to it कि इन दो सेक्शन को मैंने क्यों आपको शुरू में अटेम्प्ट करने के लिए बोला है। सो इफ यू विल लुक केयरफुली, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस मतलब करंट अफेयर्स के अराउंड 30 क्वेश्चन और लीगल के 40 क्वेश्चन, मतलब इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 70 क्वेश्चन you are attempting in 1/3 of the time। I have already told you for 40 questions in legal reasoning, you should not devote more than 30 minutes, ठीक है, और 15 मिनट इसके लिए। सो प्रोबेबली 45 मिनट्स का एक ब्रैकेट हम लोग लेके चल रहे हैं। सो हो सकता है वो 45 से 50 मिनट हो जाए, ठीक है, बट फिर भी आप देखिए आपने 50% क्वेश्चन 1/3 टाइम में कर लिया है। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है बाकी 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें बीच वाला सेक्शन मैथ्स वाला तो आप ऑलरेडी सोच ही चुके हैं कि मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है और मुझे उतने अच्छे से करना भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश के बाद रखा है, ठीक है। सो आफ्टर दिस बिकॉज यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग, आप रीड करके करंट अफेयर्स भी सॉल्व करोगे, लीगल में भी रीडिंग का थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इंग्लिश करो, क्योंकि कंटेंट हो सकता है कुछ सिमिलर भी हो और कुछ डिफरेंट भी हो, बट नाउ यू आर इन अ मोड ऑफ रीडिंग, सो जस्ट अटेम्प्ट इंग्लिश,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश आता है सीईटी में, बिलीव मी, ग्रामर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वन लाइनर रहेंगे, बहुत लंबे नहीं रहते हैं कि हमको सोचना पड़े कि यार बहुत ज्यादा रीडिंग तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इवन आई हैव टोल्ड यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जो है वो 200 to 250 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इनिशियली नहीं अटेम्प्ट करो, स्टार्ट मत करो इमीडिएटली आफ्टर लीगल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ बहुत पढ़ के हो गया। सो स्टार्ट विद ग्रामर, स्टार्ट विद वोकेबलरी, ओके, स्टार्ट विद क्लोज चेस्ट, वो क्वेश्चन से शुरू करके, एंड देन यू कैन एंड अप विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कीप मैथ्स इन बिटवीन। क्योंकि क्या होगा, अगर रीजनिंग में फंसे तो मैथ्स में हो सकता है तुक्का मारने के लिए भी टाइम ना मिले। सो दैट्स द ओनली रीजन आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि रीजनिंग सबका फेवरेट है। ठीक है, सबका। आई कैन अश्योर यू कि यहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ये बोल रहा हो कि मैम रीजनिंग तो हम छोड़ के ही आने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली ये सोच रहे होंगे कि रीजनिंग से ही हम शुरू करेंगे क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, राइट। सो वैसा भी मत करना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर रीजनिंग से शुरू किया और वो 1/3 टाइम, या हो सकता है 50 मिनट से ज्यादा आपने डिवोट कर दिया रीजनिंग में, तो फिर ब्लंडर होगा, फिर क्योस होगा। ठीक है, जो लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, क्योंकि पजल और अरेंजमेंट, बिलीव मी, एक बार फंसे ना आप, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है, बट अगर आंसर नहीं आया और अगर आप स्टक हो गए तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है। सो जस्ट डोंट डू दैट। ठीक है, रीजनिंग लास्ट में भी रखोगे तो भी याद रहेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड गेटिंग द आंसर्स। यहाँ कुछ आपने कोई चीजें रटी नहीं है कि वो रटा हुआ आपको याद रखना है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करना है वहां पे। ठीक है, तो ये सारा स्टफ वहां नहीं रहने वाला है। इट इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट मेनी डेज। ठीक है, तो रिविजन तो आपने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था लॉजिकल का, आई एम प्रिटी श्योर। तो जो रिवाइज किया है बस उसी को ही आपको वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। तो रीजनिंग को सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर क्वांट, फॉर मैथ्स, जेन्युइनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, एंड आई एम प्रिटी श्योर 5 क्वेश्चन सबसे बनेंगे, वो सिंपल ही होंगे। ठीक है, और एग्जाम के बाद बता देना मुझे कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नाउ I'll be just giving you a overview about last year's paper. I know Rishi sir had already covered it, but what I feel is कि last moment पे ये भी पता होना ज़रूरी है कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था और इस साल क्या क्या प्रोबेबिलिटीज या क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। सो लास्ट ईयर इफ विल सी, लीगल रीजनिंग वाज इजी सेक्शन। जो करंट अफेयर्स था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, स्टैटिक से थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स, इज व्हाट आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम लास्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लगा, क्योंकि हमारी हैबिट होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर सीईटी दे हैड ऑलरेडी अपियर्ड फॉर क्लैट, और हमारी हैबिट होती है कि हम करंट अफेयर्स के सेक्शंस को ज़्यादा एम्फेसाइज करें, वो ज़्यादा रीड करें, और ऑल टुगेदर अगर स्टैटिक का पोर्शन बढ़ा दिया जाए उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो चीज़ें थोड़ा सा मॉडरेट पे चली जाती है। सो दैट वाज द केस इन लास्ट ईयर पेपर। लॉजिकल रीजनिंग, yes, it was difficult. Why I am telling you difficult? क्योंकि puzzles और arrangement, कुछ puzzle कुछ arrangement, not all I am talking about, but कुछ puzzle और कुछ arrangement difficult थे जहाँ बच्चे stuck हो गए थे। ठीक है, लग रहा था कि बन जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। लास्ट मोमेंट तक भी आंसर नहीं आ पाया था आफ्टर डिवोटिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट सेक्शन। ठीक है, सो दैट्स द ओनली रीजन। बट इस साल हो सकता है लॉजिकल आपका मॉडरेट पे चला जाए या इजी पे चला जाए, बट इट हार्डली मैटर्स, उसको लास्ट रखना है, मतलब रखना। ठीक है, बाकी सीक्वेंसेस आप चेंज कर लो अपने हिसाब से, बट what my personal suggestion to you is keep the logical reasoning at the end. ठीक है, जस्ट डोंट टेल कि मैम वो मेरा स्ट्रेंथ एरिया है तो मैं तो उसी से ही शुरू करूंगी। आप उससे शुरू करके एक आध मॉक में अपीयर करके देख लेना, यू विल फाइंड कि इजी तो होता है या इंटरेस्टिंग भी होता है, बट साइमल्टेनियसली वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, सो दिस पेपर इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द टाइम विथ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। इंग्लिश बहुत ईजी था लास्ट ईयर,
ठीक है। इवन जो वोकैबुलरी भी पूछी गई थी वो बहुत सिंपल थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी बहुत स्ट्रेट अवे थे, ऑथर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। तो इस बार हम लोग इंग्लिश को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं पेपर में। तो हो सकता है ये इजी से मॉडरेट चला जाए, बट इट हार्डली मैटर्स इफ़ यू आर गुड विद योर इंग्लिश सेक्शन। अगर वो इजी से मॉडरेट भी गया तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है आपके लिए। और अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है देन इट्स ओके। लाइक अब लास्ट मिनट पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है या समझ ही नहीं आ रहे हैं। सो जस्ट लीव इट, ओके। एंड मैथमेटिक्स इट वाज मॉडरेट। सो इस बार चांसेस है कि ये भी आपका इजी या फिर डिफिकल्ट साइड पे भी चला जाए, क्योंकि मैथ्स कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो डिफिकल्ट मतलब हो सकता है कि मे बी कैलकुलेशंस डिफिकल्ट ना हो बट क्वेश्चन की लेंथ वो बढ़ा दे, या फिर क्वेश्चंस छोटे हो और कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो या कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स आपके मैथमेटिक्स में हो सकते हैं। लीगल रीजनिंग लास्ट ईयर इजी था, तो इस साल हो सकता है प्रोबेबली ये इंटरचेंज हो जाए कि आपका करंट अफेयर्स इजी आ जाए और आपका लीगल मॉडरेट पे चला जाए, या फिर वो लोग सेम पैटर्न भी रख सकते हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब पे आप सर्च करने मत बैठना कि एक्सपर्ट के व्यूज क्या है, कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि 2020 में पेपर कैसा आएगा सीईटी का। ठीक है, तो ये सब फालतू चीजों में बिल्कुल भी मत पड़ना। ठीक है, जस्ट हैव अ फेथ ऑन यू, अपने आप पे बिलीव रखो। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू डू वंडर्स इन द एग्जाम। ठीक है, सो जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू, और अपना बेस्ट दो एग्जाम में। राइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल। बहुत है इतना ज्ञान, और चाहिए और दे दो मैम थोड़ा सा, 5 मिनट है अभी। ठीक है, so for that I have brought a image for you that success is the sum of small efforts repeated day in and day out। ठीक है, तो ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है कि मैं एक दिन में सीईटी का पूरा सब कुछ रिवीजन करके और अगले दिन पेपर को फोड़ के आ जाऊंगी। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। It's constant efforts, and I know most of you have put your efforts since you have started with your preparation। तो वो प्रिपरेशन में जो अब सक्सेस आएगी, जो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, वो आपके इन्हीं रिपीटेड जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, ठीक है, तो उसका ही रिजल्ट होगा अल्टीमेटली। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक। ठीक है, तो बिल्कुल भी एग्जाम में ये मत सोचना कि अगर मैं लकी रहा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा, लकी नहीं रहा तो पता नहीं क्या होगा। और आज तो 11 है, मतलब 11th है। ठीक है, तो नंबर 11 इज नॉट लकी फॉर मी, और कुछ लोग सोचेंगे नंबर 11 इज लकी फॉर मी। ठीक है, तो ये सब फालतू चीजों में मत पड़ो यार। मतलब इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल सच थिंग्स, देयर इज अ सिंपल रीजन टू इट। ठीक है, अभी इतना नेगेटिविटी चल रहा है ना आसपास में कि नहीं चाहते हुए भी ये सब चीजें आती ही है दिमाग में। ठीक है, हम कितना भी कंट्रोल करेंगे, और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊं आपके साथ जो है वो है सोशल मीडिया। सो आई वाज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ माय सेशन, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। ठीक है, अनइंस्टॉल करके रख लो, री इंस्टॉल कर लेना 11 तारीख के बाद। ठीक है, उसके बाद सारे फ्रेंड से कनेक्टेड हो जाना और बता भी देना कि सीईटी का पेपर कैसा गया। राइट, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट from the entire Vikalp Academy team, and I'm sure and I'm confident on this that you all are going to come with flying colors. So thank you so much for listening me patiently, I would say, है ना। and आपको ये strategies काम करेगी एग्जाम में। ठीक है, मोटिवेटेड रहो एंड कीप थिंग्स गोइंग। ठीक है, लाइफ को चलने दो, रुकने मत दो। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, लगा कुछ लोगों को, मैंने बात भी किया उनसे, लगता है क्योंकि हमने इतने एफर्ट्स लिए हैं,
बुरा लगेगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन्स कि हाँ बटन ऑफ कर दो, अब बुरा लगना बंद, बटन चालू करो ऑन, नहीं, बुरा लगेगा बिकॉज यू हैव टेकन एफर्ट्स, बट इट्स ओके, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, फाइन, ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रेंड्स।